Good morning, dear students. We are doing chapter number 22, financial statements with adjustments. This is the part 6. And today we will discuss next adjustment, 18th, manager's commission on net profit. So students, sometime and in addition to his regular salary, the manager is entitled to a commission on net profit. This is the done to induce him to take more interest in the business. So since the commission is always calculated at the end of the accounting period, it is treated as a outstanding expenses. जैसे आप बिल्कुल लास्ट में नेट प्रॉफिट यू विल कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, हम उस नेट प्रॉफिट पे ही इस मैनेजर की कमीशन को कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो एंट्री विल बी कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन. Outstanding commission Arman, unmute yourself. Yes, what is the treatment in final accounts? First of all, it will be recorded on the debit side of the profit and loss account. Treatment में first point, you will show this commission debit side of the profit and loss account. First of all, okay. And second thing, it is shown on the liability side as a outstanding expense. Okay, so you will show second treatment. You will show this expense as an outstanding expenses in liability side as outstanding expense. Okay. Now, methods of calculating the commission. So students, we have two methods. The commission may be based, first of all, a part, that is the on profits before charging such commission. First base. So students, suppose if the profit earned by the firm before allowing the commission, manager's commission is 22,000. We are taking one example. अगर आपके पास कमीशन देने से पहले का जो प्रॉफिट है, that is the 22,000, and manager is entitled to commission of 10% at the rate of 10% per annum on net profit before charging such commission. ठीक है, ये before वर्ड आपका साथ में इसमें मेंशन होगा, तो आपने ये देखना है. तो how you can calculate? तो you will calculate manager's commission $22,000, 10%, 2,200. Okay, 2,200. And in the second case, on the on profit after charging such commission, second part, B part, on profits after charging such commission. It means, students, suppose the profit earned by the firm before allowing the manager's commission is again, that is the 22,000. मैं example से clear कर रही हूँ आपको दोनों का difference. And the manager is entitled to a commission of 10% at the rate after charging such commission. Okay, afterward यहाँ पर mention होगा. Net profit remaining finally after charging his commission. Okay, then manager's commission we will calculate. Manager's commission is equal to 22,000 multiplied by 10 by 110, because जो ये 22,000 है इसने commission जो है already included है. Okay, और हम उसको separate कर रहे हैं. So you will calculate 22,000 multiplied by 10 by not 100, 10 by 110 means 100 plus 10. Commission इसमें include करके आप उससे divide करेंगे. Okay, that will be 2,000. ये आपका difference रहेगा. अगर बिफोर वर्ड यूज हो रहा है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है, तो यू विल कैलकुलेट सिंपल मेथड. बाय सिंपल मेथड जैसे कि यू विल कैलकुलेट 10% ऑफ 22,000.
10 by 100. And if it is given after charging such commission, you will calculate 10 by 110 because इसमें जो है commission already included है 22,000 में, और you will calculate by 10 by 110. Okay, तो 2000 जो है आपकी इसमें commission है. तो ये दोनों में difference आपको यहाँ पर mind में clear करना है. Okay, next illustration number 15. We are doing illustration number 15. So I'm reading page number 22.45. Open page number 22.45. I'm reading this illustration from the following trial balance of Messrs. Arjun and Sons as at 31st December 2016. Prepare trading and profit and loss account and balance sheet. Students, all items are given in trial balance. You can see all items are given in debit and credit side. Okay, and adjustments also are given. I'm reading adjustments. Okay. First adjustment is closing stock rupees 64,000. So students, you know very well treatment of the closing stock. First of all, we will show closing stock in trading account in credit side, and secondly in asset side. Okay. Second point is wages outstanding rupees 2,400. Outstanding wages you will add. Okay, you will add in wages in trading account, and second thing you will show outstanding wages in liability side. And third adjustment is bad debts rupees 600, and provision for bad debts and bad and doubtful debts is to be 5% on debtors. So students, this is the further bad debts. You will add in bad debts, this further bad debts, and you will deduct this amount from the debtors, and the balance amount जो आएगा आपके पास, you will calculate you will create new provision 5% at that amount. Okay, आप उस पे क्रिएट कर लेंगे 5% का नया प्रोविजन. ओके, और वो प्रोविजन भी आपको डेबिट साइड में बैड डेब्ट्स में ऐड करके दिखाना है. सेकंड, इसका जो ट्रीटमेंट है, यू विल डिडक्ट फर्दर बैड डेब्ट्स फ्रॉम द डेटर्स एंड आल्सो प्रोविजन you will deduct from the debtors, and you will show debtors in asset side. Okay, then D point, rent is paid for 11 months. So student, यहाँ जो rent given है वो 11 months का है, और 1 month का अभी भी pending है. तो you will calculate, okay, जो भी rent है उसको divide करेंगे आप 11 से, तो you will calculate per month rent, and you will add that particular per month जो भी 1 month का आप इसमें calculate कर लेंगे. 22,000 given है, so you will calculate 22,000. You will calculate 1 month rent from the 22,000. It means 1 by 11. यहाँ पर 11 months का given है, तो 12 नहीं करना, divided by 11 करना है. तो यहाँ से 2,000 पर मंथ का रेंट आपके पास कैलकुलेट होगा, और आप उसको क्या करते हो, आउटस्टैंडिंग को ऐड करके शो करोगे. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको आपको करके 22,000 multiplied by 1 by 11, 2,000. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब इसमें जो ये शो करेंगे क्या है, ये रेंट टू रेंट 22,000 प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट 1 मंथ का जो आपने ये कैलकुलेट किया है 2,000. You will show 24,000 in main column. Okay, and second treatment, you will show 2,000 in liability side as outstanding rent. Next, E point, loan from bank was taken on 1st July 2016. Student, 1st July 2016 you are taking this loan from 1st July. So you will calculate, because ये जो आपकी ending है वो कब हो रही है, फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग कब हो रही है, 31st December. You will count months from 1st July to 31st December. Okay, July, August, September, October, November, December. It means 6 months. You will calculate interest on loan for 6 months. 6 months के लिए आपको यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास लोन के सामने उसका रेट गिवन होगा. यस, 8% बैंक लोन. तो ये गिवन इंफॉर्मेशन जो है ये आपकी इसी पर्पज से दी गई है ताकि आप इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सको. तो 8% बैंक लोन 25,000 गिवन है ये आपके पास. You will calculate 8% on 25,000 for 6 months,
एंड जो इंटरेस्ट है लोन के ऊपर पे करना है, सो दैट्स व्हाई दिस इज द एक्सपेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस. So you will show this interest in debit side of the profit and loss account, क्योंकि ये पे करना है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, तो ये एक एक्सपेंस है. So that's why we will show in the debit side of the profit and loss account. फर्स्ट ट्रीटमेंट. और सेकंड ट्रीटमेंट इसका, क्योंकि लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो लोन में इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से. तो सेकंड थिंग, सेकंड ट्रीटमेंट, यू विल शो दिस इंटरेस्ट इन लायबिलिटी साइड बाय एडिंग इन बैंक लोन. बैंक लोन में आप इसको ऐड करके शो करना, ठीक है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एफ पॉइंट, प्रोवाइड एप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट 10% per annum. So you will calculate 10% on machinery and you will show depreciation in debit side of the profit and loss account. Second thing, you will deduct this depreciate amount from the machinery. Okay. And next, last point, that is the main point of this illustration, जो कि मुझे आपको आज ये जो हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं इसके ऊपर बेस्ड है. Provide managers commission at 10% on net profit after charging such commission. Yes, student, in this question, this is given the second method on profit after charging such commission. Okay, यहाँ पर मैनेजर को जो कमीशन देना है that is the 10% on net profit. First of all, you will calculate net profit. आपने प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपना प्रिपेयर कर लेना है और नेट प्रॉफिट उसमें से कैलकुलेट करना है. ये सारे एडजस्टमेंट जितने भी हमने डिस्कस किए हैं उनको यूज करके. आफ्टर देन जो आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया है इस क्वेश्चन में, उस नेट प्रॉफिट को आपने इसमें यूज करना है. ओके, तो वो हम इसमें करके देखते हैं. बिकॉज आफ्टर चार्जिंग है तो यू विल एड 10% इन 100 एंड यू विल डिवाइड बाय 110. ठीक है. So students, in this question net profit जो बैलेंस आपके पास नेट प्रॉफिट आया है that is 32,200. ये किसकी है? ये कच्ची देखिए कितनी है, रोटी बनानी. ये देखियो, इसको थोड़ा लाल तो कर ले, खा अब अपनी कच्ची रोटी. क्या बना रही है? Who is Garima? Who is Garima? $32,200. Okay, this is your net profit and you will calculate 10 by 110. ये हम यहाँ कमीशन कैलकुलेट कर रहे हैं, मैनेजर्स कमीशन that is given on profit after charging such commission. You will calculate 100 plus 10 by 110. Okay, so amount will be 2927. Okay, 2927, right? Profit and loss account. सपोज आपने ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपने कर ली है और यहाँ भी आपने नेट प्रॉफिट को शो नहीं करना. ओके, यू विल कैलकुलेट दिस नेट प्रॉफिट इन रफ साइड. आप उसको रफली कैलकुलेट करेंगे एंड यू विल कैलकुलेट इन वर्किंग नोट. यू विल कैलकुलेट कमीशन इन वर्किंग नोट. कमीशन को आपने वर्किंग नोट, फाइनल वर्किंग नोट में शो करना है. ठीक है, यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1 या 2 जो भी है आपका, तो आप उसमें फाइनली शो करेंगे. एंड यहाँ यू विल शो मैनेजर्स कमीशन 2927. Now you will deduct 2927 from 32,200. 2927 you will deduct. अब आप इसमें से इसको डिडक्ट करेंगे ताकि आपके पास एग्जैक्ट इसका जो है नेट प्रॉफिट आ जाए 29,273. ओके, टू नेट प्रॉफिट 29,273. Now you will make total in both sides. ओके, जैसे आपकी बुक में ये रीस्टार्ट भी हो रखा है. अगर आप इस तरीके से आपको इजी लगता है आप ऐसे कर लो, अदरवाइज यू कैन यूज दिस मेथड ऑल्सो.
चॉइस इज योर, आप जैसे करना चाहते हो वैसे कर लो। ठीक है, बुक का जो मेथड है उसमें एक बार उन्होंने क्लोजिंग किया है उसको टोटल बैलेंस निकालने के बाद, देन दे कैलकुलेट द कमीशन एंड कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट। बट मैंने यहाँ क्या किया, क्लोजिंग नहीं की है। आपका क्वेश्चन जैसे एज इट इज चल रहा है चलने दो। यू विल कैलकुलेट कंप्यूट balance or net profit in rough side, okay, and you will calculate commission in working note। working note में आप इस कमीशन को कैलकुलेट कर लो और इस कमीशन को पहले मेंशन कर दो, 2 मैनेजर्स कमीशन, और आफ्टर देन इसमें से ही आप कमीशन को डिडक्ट करने के बाद यहाँ पर शो करेंगे, वो आपका जो है वो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। आपको बार बार क्लोजिंग नहीं करनी पड़ेगी, मींस आपको अगेन एंड अगेन आपको रीस्टार्ट करने की यहाँ नीड नहीं है, आप एक ही बार इसको क्लोज कर दो। ठीक है, और सेकंड जो इसका इफेक्ट है मैनेजर्स कमीशन, मैंने आपको भी बताया है वो क्या है, इसको आपने कहाँ शो करना है, एज ए, क्योंकि ये क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सो यू विल शो 2927 इन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो नेक्स्ट illustration number 16 you can do by yourself, okay, I'm reading just adjustments। 16th illustration students, I'm reading adjustments। The following is the trial balance of Ram Krishna Vyas as at 31st March 2019, prepared trading and profit and loss account and balance sheet after making the following adjustments। जो इसमें एडजस्टमेंट्स गिवन है वो मैं रीड कर रही हूँ, 22.47 पेज नंबर है। प्लीज ओपन दिस पेज नंबर एंड लिसन केयरफुली। फर्स्ट एडजस्टमेंट इज वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 29,638। सो स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल कि इसको हमें क्या करना है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 29,638। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक फर्स्ट ट्रीटमेंट यू विल शो इन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, एंड सेकंड थिंग you will show this item in asset side। Second adjustment, depreciate plant and machinery 10%, furniture 5%, horses and cards 1000, also write off goodwill by 3000। so students ये सारी आपकी जो है डेप्रिसिएशन है जो डेबिट साइड आप शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, to depreciation on you can show in inner column plant, furniture, horses and cards। इवन गुडविल को आप सेपरेट शो कर देना क्योंकि वो भी राइट ऑफ हो रही है, उसकी भी वैल्यू जो है वो डाउन हुई है। सो यू कैन शो द टू गुडविल एंड यू कैन शो विद इन ब्रैकेट रिटर्न ऑफ। राइट ऑफ हो रही है ना, कम हो रही है उतने से, क्योंकि गुडविल के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं होता, वो राइट ऑफ हो सकती है, कम हो सकती है। ठीक है, तो ये भी डेबिट साइड में ही शो होगा। Third adjustment is provide 5% for doubtful debts on debtors। So students you will create provision। ठीक है, प्रोविजन यहाँ क्रिएट होगा इसके ऊपर डेटर्स पे। यहाँ कोई फर्दर बेड डेट्स गिवन नहीं है, सो दैट्स वाई आपको कुछ भी माइनस नहीं करना डेटर्स में से, डायरेक्टली आप उसके ऊपर क्रिएट करेंगे। देन है प्रीपेड प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिसमें आपके पास 2 एक्सपेंसेस हैं, इंश्योरेंस 300 एंड टैक्सेस 190। प्रीपेड इंश्योरेंस यू विल ऐड दिस एक्सपेंसेस इन द स्पेसिफिक जो भी इंश्योरेंस है उसमें आप 300 ऐड कर देना और 119 टैक्सेस में आप ऐड कर देंगे। सेकंड ट्रीटमेंट इसका क्या होगा, you will show these prepaid expenses in asset side। okay, next fifth point is 3/5 of the insurance and taxes, rent and general expenses to be charged to the factory and balance to the office। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये दो तरह की आपकी आइटम्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल 3/4 ऑफ इंश्योरेंस जो है आपको क्या करना है, इसको ट्रेडिंग अकाउंट में शो करना है, क्योंकि ये आपका क्या है, फैक्ट्री से रिलेटेड है, फैक्ट्री में चार्ज हुआ है। ओके, 3/5, और जो बाकी बैलेंस है, बैलेंस आपका बचता है 2/5। कैसे कैलकुलेट किया, सपोज अगर टोटल आपका रहता है 1 में से 3/5 पोर्शन जाएगा उसमें फैक्ट्री में, तो बैलेंस आपके पास बचेगा 2/5। 2/5 पोर्शन जाएगा ऑफिस में, 3/5 जाएगा फैक्ट्री में। इसमें ये ट्रेडिंग अकाउंट में आप शो करेंगे और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैलकुलेट कर लोगे ना आप इसको, क्योंकि 3/5 आपका इंश्योरेंस एंड टैक्सेस की आपके पास आइटम इसमें गिवन होगी, देख लो। इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, चेक इन ट्रायल बैलेंस।
यस 4175, ठीक है 4175 गिवन है आपके पास ये आइटम, ठीक है 4175। Rent and general expenses to be charged to the factory and balance to the office। बाकी आपको ऑफिस में यहाँ जर्नल एक्सपेंसेस को भी ऐसे ही लेना है और रेंट को भी ऐसे ही लेना है, ठीक है। तो आप इसमें कैलकुलेट कर लेना। रेंट भी आपके पास गिवन है, रेंट है 2400 से, जनरल एक्सपेंसेस जो आपके पास गिवन है, जनरल एक्सपेंसेस गिवन है 8000 से, ओके 8000, यस। तो इन सबका 3/5 पोर्शन आपने जो है वो किसमें लेना है, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो एक और इसमें जो पॉइंट आपको नोटिस करना है, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट भी थी इंश्योरेंस एंड टैक्सेस की, तो उसका क्या करें। तो स्टूडेंट आप ट्रेडिंग अकाउंट में ही उसकी एडजस्टमेंट कर लेना, और एडजस्टमेंट करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसका 3/5 करना है आपको, ठीक है। पहले नहीं करना, मीन्स जो आपके पास आइटम है 4175 इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिडक्ट प्रीपेड इंश्योरेंस फ्रॉम दिस अमाउंट। आप इस अमाउंट में से इसकी प्रीपेड इंश्योरेंस को माइनस कर दो 490 को माइनस करने के बाद मैं आपको यहाँ करके बताती हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ जो बन रहा है आपका, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, ओके। और यहाँ क्योंकि ये बोला है कि 3 एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिनको हमें ट्रेडिंग में भी दिखाना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दिखाना है। 3/5 पोर्शन ट्रेडिंग में दिखाएंगे और जो बैलेंस 2/5 पोर्शन है वो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। बट इसमें उसमें से कुछ एक ऐसी एडजस्टमेंट है जिसमें एडजस्टमेंट भी है, एक ऐसी आइटम है, ठीक है, जिसमें जैसे कि इंश्योरेंस एंड टैक्सेस आपके पास जो गिवन है 4175, ओके। एंड इसके साथ प्रीपेड इंश्योरेंस भी ऑल्सो गिवन है इसमें, तो यू विल डिडक्ट प्रीपेड इंश्योरेंस, इसी में से आप इसमें से लेस करोगे 490, ये गिवन है आपके क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में, ठीक है। माइनस करके ये आपके पास आएगा 3685, ओके। अब आप इसका 3/5 करेंगे, यू विल कैलकुलेट 3/5 ऑफ 3685। इसका 3/5 पोर्शन जो है वो आएगा 2211, that portion you will show in trading account, okay। and secondly जब इसके बाद आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो इसके आगे इसका मेंशन होगा, जैसे ये सपोज ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज है, तो यहाँ आप अगेन स्टार्ट करेंगे टू इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, you will show 2/5 portion of 3685, okay students। 3685 का 2/5 पोर्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पर शो करके दिखाएंगी, 2/5 पोर्शन 1474। मतलब यहाँ एडजस्टमेंट आपने यही करके, एडजस्टमेंट करने के बाद जो अमाउंट आया है उसका 3/5 करना है, ठीक है। कंप्लीट अमाउंट का नहीं करना, पहले अमाउंट का नहीं करना। ऐसे ही सेम रेंट के साथ भी ऐसे करना है आपको, टू रेंट 3/5 पोर्शन यू विल शो इन ट्रेडिंग अकाउंट, 2/5 पोर्शन यू विल शो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। एज वेल एज आपको जनरल एक्सपेंसेस का भी करना है, 2 जनरल एक्सपेंसेस 3/5 पोर्शन इन ट्रेडिंग अकाउंट एंड 2 जनरल एक्सपेंसेस 2/5 पोर्शन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है, ये आपको इस तरह से करने हैं, 3/5 पोर्शन को आपने ऊपर शो करना है और नीचे 2/5 पोर्शन को आपने शो करना है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट 6th पॉइंट, एडवर्टाइजिंग इज टू बी रिटन ऑफ ओवर 3 years। यानी कि एडवर्टाइजिंग को, ये मैंने कल हमने कहा था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, that is the part of, okay, this type of expenses। तो स्टूडेंट्स इसमें हम स्प्रेड करते हैं ना इस एक्सपेंसेस को काफी आगे के ईयर्स में, तो ये ईयर आपके पास गिवन है 3 years में आपको उसको स्प्रेड करना है। तो एडवर्टाइजिंग आप देख लो, क्वेश्चन में आपके पास गिवन है 4500 से, 4500
you will divide by 3. 1500. It means each year, हर साल आप इसको you will charge 1500 each year. तो करंट ईयर से भी हम कितना चार्ज कर सकते हैं? 1500. तो you will show 2 advertising 1500. ओके, और बैलेंस अमाउंट क्या आएगा? 4500 माइनस 1500, 3000. तो स्टूडेंट्स, दिस 3000 we will show in asset side. कि जो बैलेंस है उसको हम एसेट साइड में शो करके दिखाएंगे नेक्स्ट ईयर के लिए. ओके, ये हमें 3 इयर्स में इसको रिकवर करना है, राइट ऑफ करना है. नेक्स्ट लास्ट एडजस्टमेंट 7th, कमीशन टू मैनेजर एट 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. अगेन आपके पास अगेन आफ्टर चार्जिंग का ही इसमें टॉपिक है. फिर से आफ्टर चार्जिंग मीन्स 100 प्लस 10, 110 आपको डिवाइड करना है 110 से, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 100. तो स्टूडेंट्स, यहाँ आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कैलकुलेट नेट प्रॉफिट. एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट आप इसमें कैलकुलेट कर लेना रफ में. देन जैसे ये वर्किंग नोट हमने बनाया था, यू विल कैलकुलेट मैनेजर्स कमीशन. कैसे करेंगे? इसमें जो भी नेट प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया है उसके 10/110 जो अमाउंट आएगा, जैसे अभी मैंने इसको करके आपको शो किया था, वैसे आपने इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल 2 मैनेजर्स कमीशन. आफ्टर देन इस कमीशन को इस अमाउंट में से माइनस करने के बाद जो आया वो आपका एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट आएगा. तो यू विल शो नेट प्रॉफिट, ठीक है, लास्ट. दिस इज योर लास्ट एडजस्टमेंट. ओके, नाउ illustration number 17 you can do by yourself. Okay students, 17th illustration तक आपका easily हो जाएगा. And you will solve exercise question from the back exercise. Okay, you will solve question number 14, 15, 16, 17 from back exercise. Okay, in your notebook. Thank you students, have a nice day.